John Wesley, the founder of Methodist Church, जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट कलीसिया के संस्थापक हैं, traveled 250,000 miles. That's 250,000 miles on a horseback. 2,50,000 मील जो है घोड़े पर होकर उन्होंने यात्रा की, Averaging 20 miles a day for a good 40 years. अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो 20 मील प्रतिदिन अच्छे 40 साल के लिए। This man of God preached 40,000 sermons. ये परमेश्वर के जन ने 40,000 प्रचार या संदेश को सुनाया, Wrote more than 400 books. 400 से भी अधिक किताबों को उन्होंने लिखा। At the age of 86, 86 वर्ष की आयु में he was annoyed with himself and he said that I can't write more than 5 hours a day because my eyes starts paining. वो अपने आप से नाराज होकर कहने लगे कि 5 घंटों से ज्यादा मैं दिन में लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी आंखें जो है मुझे दर्द देने लगती He है। was annoyed with himself saying that I tend to sleep beyond 5:30 in the morning. I don't get up to pray and read the word of God. अपने आप से वो गुस्सा थे और कहने लगे कि मैं 5:30 बजे से ज्यादा सोता हूँ और मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, वचन को पढ़ नहीं पाता हूँ जल्दी। One word to describe this man's attitude. और इनकी प्रवृत्ति एक शब्द में अगर बताया जाए तो It should be zeal. इसको जुनून कहा जाता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी I बहनों, want us to open our Bibles to Colossians chapter 4 verse 12 and 13. आइए अपने पवित्र शास्त्र में देखेंगे कोलोसियों की किताब 4 अध्याय 12 और 13वां वाक्य। There's something that the Lord Almighty wants us to learn this morning. और इस सदरे के वक्त परमेश्वर हमको कुछ सिखाएंगे। Here in Colossians chapter 4 verse 12 and 13 says, Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in the will of God. Verse 13, for I bear him witness that he has great zeal for you and those who are in Laodicea and those in Hierapolis. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। कोलोसियों की किताब 4 अध्याय 12 और 13। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। 13वां वाक्य, मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता है। If you look at the life of Epaphras, अगर आप जो है इफ्रास के जीवन को देखते हैं, if you look at John Wesley's life, अगर आप जॉन वेस्ली के जीवन को देखते हैं, my brothers and my sisters, one thing that you see here, और एक बात आप यहाँ पे देखते हैं that is undying zeal for the Lord and the works of God. कि न मरने वाला परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए वो जुनून। The word of God says, always laboring fervently for you in prayers. और यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। Some of us tend to kind of labor, go to the level of laboring. That means to say, spend hours in prayer. हम में से चंद लोग जो है हम परिश्रम करते हैं, इसका मतलब है हम काफी समय जो है प्रार्थना में बिताते हैं। Those prayers are not ordinary prayers, they are burden prayers. और ये ऐसी प्रार्थनाएं जो है बोझ वाली प्रार्थनाएं होती हैं। These are with great burden prayed for others. और देखिए ये बोझ के साथ प्रार्थना की जाती है दूसरों के लिए। What was the prayer? That you may stand perfect and complete in all the will of God. कि परमेश्वर की इच्छा में तुम स्थिर रहो। And Paul endorses this man and he says, for I bear him witness that he has a great zeal for you. और पौलुस जो है इनके बारे में कहते हैं कि मैं गवाह हूँ तुम्हारे लिए जो है इनमें बड़ा तुम्हारे लिए ये बड़ा यत्न करते हैं। 250,000 miles is not a small distance. 2,50,000 मील छोटा डिस्टेंस नहीं है। It is not sitting in an AC coach or flying down from one country to another country. ये एसी कोच में बैठकर वो नहीं जाते थे या फिर एक शहर से दूसरे शहर उड़ के नहीं जाते थे। It is beating the cold, it's beating the sun, it's beating the rains and traveling on a horseback, not for one day, not for 2 days, for good 40 years, preaching 40,000 sermons and
writing more than 400 books. देखिए ठंड में या गर्मी में उस घोड़े के पीठ पर सवार होकर जो है यात्रा करना, 40,000 से भी अधिक संदेशों को सुनाना, सरमन्स को सुनाना और 400 से भी अधिक किताबों को लिखना आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। Most of us run out of steam in no time. हम इसे अधिकांश लोग जो है फुस हो जाते हैं कुछ ही समय में। I do not know how many of us know this saying, running out of steam. हम नहीं जानते हैं कितने लोग इस कहावत को जानते हैं। अंग्रेजी में है रनिंग आउट ऑफ स्टीम। Steam is nothing else, water which is liquid turned into a vapor in the form of power. ये कुछ नहीं है, पर पानी जो है जब इसको गर्म किया जाता है तो भाप के रूप में जो दिखाई पड़ता है या बदलता है वो चीज़ है। This steam has so much of power. ये भाप में जो है ऊर्जा होती है। The more that you boil the water, और जितना पानी को गर्म करते हैं, the more that this steam is formed, उतना ज़्यादा जो है ये बनता है। it looks to kind of get out of a certain thing. और चाहता है कि निकल जाए, मतलब उड़ जाए। And with that great power, it pushes the engine, which is more than 250 tons. और उसी शक्ति के साथ जो है ये इंजन को चलाता है जो 250 टन से भी ज़्यादा वजनदार है। This simple water, when it is boiled and it is converted into steam, and that energy can pull 250 tons of rail onto the mountains and overcome the mountains. Imagine what you're talking about. और देखिए ये जो मामूली पानी है इसको जब उबाला जाता है भाप के रूप में, और ये भाप जो है इसका प्रयोग किया जाता है इंजन को चलाने में, मतलब ये 250 टन जो है वो पूरे रेल को जो है खींचता है पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ को जो है पार करते हुए उस पार भी उतर जाता है। Let me tell you, it's a powerful force. मैं आपसे कहूँ ये बहुत ही शक्तिशाली एक फोर्स है। I repeat, steam is a powerful ये force. भाप जो है बहुत ही शक्तिशाली एक फोर्स है, ऊर्जा है। That is exactly what we tend to develop in us when we are burdened for certain things. ये ऐसा ही हो जाता है जब हम किसी चीज़ को लेकर पूरी रीति से बोझ हमारे अंदर आ जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो हम ऐसे हो जाते हैं। Was Epaphras, was John Wesley mad people? क्या जॉन वेस्ली और ये जो प्रियजन है वो इफ्रास जो है वो पागल लोग थे? Staying committed for 40 good years. 40 साल वचनबद्ध रहे। Kept on traveling from one place to another horseback. जॉन वेस्ली 40 साल वचनबद्ध रहे और यहाँ वहाँ जो है वो यात्रा करते रहे। Kept on preaching 2 sermons a day. प्रचार करते रहे 2 संदेश प्रतिदिन। Kept on praying so much. प्रार्थना करते रहे निरंतर। Reading the word so much. वचन को पढ़ते रहे। Writing so much. कितना ज़्यादा लिखते रहे। Were they foolish people? क्या वे मूर्ख लोग थे? No, they were ordinary people who had the same blood and flesh, but they were filled with zeal for the Lord and the good works that God has called them to do. नहीं, वो सामान्य लोग थे, मामूली लोग थे, शरीर और मांस में थे नहीं, लेकिन वो जो है जुनून के साथ भरे हुए थे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, लोगों के लिए। That zeal did not allow them to sit वो down. जुनून के वजह से जो है वो बैठ नहीं पाते थे। They did not sit down because they did not think about rest. They only thought about souls. और देखिए जुनून की वजह से जो है उन्होंने विश्राम या आराम के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ प्राणों के बारे में सोचा। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, this morning the question that the Lord wants to ask you is that do you have that kind of a zeal towards God? और इस सवेरे के बाद परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर को लेकर या परमेश्वर के प्रति आपके अंदर वो जुनून है? And John Wesley did not seek to be popular man. और देखिए ये जॉन वेस्ली वो नहीं चाहते थे कि वो प्रसिद्ध हो जाए, He was not looking to be a celebrity. वो नहीं चाहते थे कि वो एक सेलिब्रिटी हो जाए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, when he was burning with that kind of a zeal, जब उनके अंदर वो जुनून था, जलता हुआ जुनून, God made him a celebrity for heaven. परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग का सेलिब्रिटी मानो बना दिया। God wants to do even greater things in you, परमेश्वर आपके अंदर भी महान बातों को करना चाहते हैं, provided that you have that similar kind of a zeal. अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए वो जुनून हो तो।
Our walk should be zeal filled. हमारा परमेश्वर में जो चलन है वो जुनून से भरा हुआ होना चाहिए। Our reading the word should be out of zeal for the और Lord. हमारा जो वचन को पढ़ना जो है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए जुनून से भरे हुए हैं, उसकी वजह से होना चाहिए। Zeal to know His will. उनकी इच्छा को जानने का जुनून, Zeal to understand His heart and mind. उनके हृदय को, उनके मन को जानने का जुनून। Our prayer should be full of that zeal to know His will and walk in His will. हमारी प्रार्थना जो है उस जुनून के साथ होनी चाहिए कि हम उनकी इच्छा को जाने, उनकी इच्छा पर हम चल पाए। You know that zeal-filled prayers do not ask for your own selfish gain. और देखिए, जुनून से भरी हुई प्रार्थना जो है अपने हित के लिए नहीं मांगता है। That zeal-filled prayers make you to pray for the world around और you. देखिए, जुनून से भरी हुई प्रार्थनाएं जो है वो कैसी होती हैं? आप इर्द गिर्द के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Such prayers accomplish great visions for God. और ऐसी प्रार्थनाएं जो है बहुत सारी चीजों को या दर्शनों को हासिल करते हैं परमेश्वर They के are लिए। not focused on you, yourself, I, myself. They're focused on others. They're focused on God and the things of God. और ये इस तरह की प्रार्थना जो है वो मुझ पर, मेरे आप पर या आप पर, आपके आप पर वो फोकस नहीं है, मतलब उसका लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर की बातों पर उसका लक्ष्य होता है। That is why they bear much fruit. इसीलिए फलवंत होते हैं ये प्रार्थनाएं। My brothers and my मेरे sisters, भाई, मेरी बहनों, this morning the Lord want to ask you a question. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछना The चाहेंगे। question is this: do you have that zeal? प्रश्न ये आपसे है कि आप में क्या वो जुनून है? If you possess similar kind of a zeal, अगर आप में उस प्रकार का जुनून है, if you're ready and raring to go for God, अगर परमेश्वर के लिए आप तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार God will हैं, help you to accomplish much in your life and also in others' life. परमेश्वर ऐसा होने देंगे कि आप अपने जीवनों में बहुत कुछ हासिल करें और आपके जरिए लोगों के जीवन में भी आप बहुत कुछ हासिल होता हुआ देख सकते हैं। You will be a flag bearer for the Most High. आप जो है परमेश्वर के लिए मानो झंडा बन जाएंगे। You will be a baton carrier in these end days. और इन अंत के समयों में आप बहुत ही ज्यादा उनके हाथ में उपयोगी होंगे। Sit down and ask yourself one simple question. बैठकर अपने आप से ये एक प्रश्न पूछ लीजिएगा, Are you burning to accomplish something for God? क्या आप जो है जुनून से भरे हुए हैं कि परमेश्वर के लिए कि आपको कुछ हासिल करना है? Sit down and make a note of all the gifts and the graces that the Lord has bestowed upon you. बैठकर जो है आप लिख लीजिएगा क्या क्या चीजें परमेश्वर ने, कौन से वरदानों से या कौन से गुणों से परमेश्वर ने आपके जीवन को भरा हुआ है। You and I are required to perform to our full potential in those gifts and graces. जो परमेश्वर ने वरदानों से आपको भरा हुआ है, जो बातों से, गुणों से आपको भरा हुआ है, जरूरी है कि हम जो है वो पूरी क्षमता से उसका उपयोग करें। When He finds you on that last day, और जब उस दिन आपसे वो मिलेंगे, He may be able to say, "Come up here, my faithful servant." जब आप उनसे मिलेंगे, जब आप परमेश्वर से मिलेंगे, तो परमेश्वर आपको देखकर ये कह पाए कि मेरे विश्वास योग्य सेवक यहाँ आओ। That He may say that all that I invested in you, that you have doubled it. कि जो कुछ भी मैंने तुम में निवेश किया है उसको तुमने डबल किया हुआ है। You have performed your full potential. तुमने अपनी क्षमता के अनुसार जो है पूरी रीति से काम किया हुआ है। This morning, think about these things. इस सवेरे के वक्त इन बातों पर आप थोड़ा मनन And as you कीजिएगा। go into the day, जैसे आप दिन में जाते हैं, the Lord will strengthen you. परमेश्वर आपको बल प्रदान करेंगे। The Lord will open your eyes to the gifts that He has placed in you. परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेंगे ताकि आप देख पाए कि कैसे गुणों को, निपुणताओं को परमेश्वर ने आपके The जीवनों में डाला Lord है। will open the doors for the use of those gifts for you. परमेश्वर दरवाजों को खोलेंगे ताकि आप उन वरदानों को उपयोग करें उनके लिए। Even as you open your mouth, even as you look forward to do things that God has called you जैसे to, आप अपने मुंह को खोलते हैं और जैसे आप उन बातों को करते हैं जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है करने के लिए, He will fulfill that perfect purpose by which that He has made you. वो सिद्ध इच्छा को आपके जीवन में पूरा करेंगे जिस कारणवश उन्होंने आपको बनाया है। In the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। With this, I want us to go into the day. इसके साथ हम चाहते हैं कि आप दिन में जाइएगा। The Lord loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, He is with you. वो आपके साथ है। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।